Morning students. After completion of rules of image formation in convex lens, today class is purely dedicated to image formation in convex lens. We have studied the 6 case related to the image formation in convex lens, the case where the object could be placed at 6 different positions, and what were the different position of object between optical center and focus, at focus, between f and 2f, at 2f, beyond 2f, and lastly at infinite. For all those 6 cases, today we will do the image formation in convex lens and we will note down the property of image form. Although you know that a convex lens is a widely used lens. Why? A convex lens can produce each kind of image, either virtual or real. It can produce either magnified, diminished, or an image of same size that of object. You have also learned that until an object is placed before 2f, I mean between optical center and 2f, the image will be magnified. Yes or not? At 2f, the image is same size as that of object, and beyond 2f, if an object is placed after twice the focal length of a convex lens at any point beyond 2f, the image will be diminished. है ना? We have also studied that a convex lens can also produce real image for majority case, for maximum case. For 5 केस के लिए हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इमेज कौन सा रियल, एंड फॉर 1 केस particular the first case when an object is placed with an optical center focus, the image will be virtual. We will note down it, but before starting just recommence the rules of image formation in convex lens. The rule where as under the rule number 1 is a ray of light parallel to principal axis in convex lens after diffraction pass through principal focus. Yes or not? What is the rule 2 of image formation in convex lens? A ray of light passing through optical center of convex lens goes straight. These 2 rules are enough. We will do image formation only on these 2 laws. However, we have studied also 3rd law as a ray of light passing through focus of a convex lens after refraction become parallel to principal axis. This is better concept. Now let us consider the image formation in convex lens. In first case, the object has been placed with an optical center in focus, and we are doing the image formation case of convex lens. Now listen carefully. A convex lens is taken. This is a convex lens. Why it is a convex lens? Because its middle portion is thicker and edge is thinner. A point shaped edge and middle portion thick. This describe a convex lens. Now listen. This line represents principal axis. This is optical center. A lens have 2 focus. Yes or not? We have studied. We have discussed in earlier lecture. Listen. F, 2f, f dash and 2f. At equal distance from the lens, focus on each side and twice of focal length on each side have been represented. Now listen. This is optical center. This is focus. This is twice of focal length. This is focus. This is twice of focal length. Now listen. Now जो ऑब्जेक्ट, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा. ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी, हम इधर ही रख रहे. देखो ये ऑब्जेक्ट है ना. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा गया ना. ध्यान से देखो, ये एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया. ए टॉप पोजिशन और बी बॉटम पोजिशन. दिख रहा है? An object having placed between optical center and focus, the top position of object is represented by A and its bottom position is represented by B. The object having placed between optical center and focus. The bottom of the object is at principal axis. Now listen carefully. We will use the rules of image formation convex lens. Suppose from source of light, a ray of light is passing through A, which is parallel to principal axis. Source of light से एक ray of light इस तरह आ रहा, क्या ये ray of light A से पास कर, ये parallel है principal axis के. What is the rule 1 of image formation convex lens? A ray of light passing through a ray of light parallel to principal axis after refraction will pass through principal focus. तो यूज करो. ये ray of light क्योंकि parallel है principal axis के, refraction में किससे पास करेगा? फोकस से. तो इस ray of light को हम फोकस से पास करवाएं. एक रिफ्रैक्टेड रे मिला, रिफ्रैक्शन में कम से कम 2, इनफैक्ट इनफाइनाइट रिफ्रैक्टेड लाइट के इंटरसेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन, और कम से कम कितना 2 इमेज रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे 2. तो माना सेकंड लॉ. व्हाट इज द सेकंड रूल लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज स्ट्रेट, है ना. अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा तो वो स्ट्रेटली चला जाएगा. तो मान देखो ये रे ऑफ लाइट क्या ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, स्ट्रेटली इसी पास से चला जाएगा, है ना. ये 2 रिफ्रैक्टेड रे है ना. एक ए से पास करा जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जा रहा है, ये पैरेलल तो एक से पास किया फोकस से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये स्ट्रेटली चला जा रहा है. ये 2 रिफ्रैक्टेड है. क्या दोनों का रियल इंटरसेक्शन हो रहा? नहीं. ये डाइवर्जिंग है. क्या यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा रिफ्रैक्टेड रे का. तो क्या यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा? नहीं. अब इमेज रियल इमेज तो नहीं बन रहा, तो वर्चुअल इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट को पीछे की ओर ट्रेस कर रहे हैं. देखो पीछे इन दोनों रे ऑफ लाइट को तुम एक्सटेंड किया, क्या दोनों रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा? इमेज का फॉर्मेशन क्या इस पॉइंट पे होता प्रतीत होगा? ये ए डैश और ये बी डैश.
ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। समझो, देखो फिर से समझा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखा गया, ये टॉप पोजीशन है, बी बॉटम पोजीशन है ना। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से पास कर, ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर जा रहा स्ट्रेटली चला गया, दोनों रिफ्रैक्टर का ओरिजिनल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन देखने के हम दोनों रिफ्रैक्टर लाइट को पीछे को एक्सटेंड किए, दोनों वर्चुअल इस पॉइंट पे मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है ना। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? डिवाइडर सभी बनाओ वीडियो पॉज करके और बनाओ, तो फिर तुम्हारा इमेज इसी तरह बनेगा, करेक्ट है। तो अब ध्यान से आगे, नाउ लिसन, नाउ वी हैव टू नोट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। बेसिकली for writing down the property of image, we use three standards. The three standards are the position of image, the nature of the image, and the relative size of image as compared to object. Now, what is the position of image? What is the position of image? You can simply say that the image is formed behind the object on the same side of the lens. देखो ध्यान से देखो, side not size, SID side. जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा। हम पोजीशन क्या लिख सकते हैं? behind object on same side of lens. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ऑब्जेक्ट के पीछे सेम साइड ऑफ लेंस के। अब आगे नेचर, हाउ कुड यू कंक्लूड द नेचर ऑफ लेंस, द नेचर ऑफ इमेज, रियल या वर्चुअल? ओरिजिनल इंटरसेक्शन हुआ है या वर्चुअल इंटरसेक्शन? ओरिजिनल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। इमेज कौन सा होगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता, तुमको दिख भी रहा। ये अपराइट इमेज है। क्यों अपराइट है बताओ? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। इमेज कौन सा इमेज होगा? अपराइट इमेज होगा ना। एक और बात, अगर हम कल ही ये बात डिस्कस किए, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ अगर इमेज का फॉर्मेशन हुआ लेंस में, वो इमेज वर्चुअल होगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही इमेज का फॉर्मेशन राइट में हो तो इमेज क्या होता? रियल। ये इमेज कौन सा होगा? वर्चुअल। दो वजह है कहने का, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट वर्चुअली मीट करता प्रतीत हो रहा। इमेज कौन सा होगा? वर्चुअल। ये इमेज इरेक्ट भी है। इरेक्ट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी टॉप पोजीशन ए है, इमेज का भी टॉप पोजीशन ए डैश है, एंड वाइस वर्सा बटन पोजीशन के लिए। और लास्टली हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये इमेज इरेक्ट होगा। लास्टली, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? ए बी इज ऑब्जेक्ट, A dash B dash is image. कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट में, which is bigger? Image. Since the size of image is more than the size of object, the image produced is magnified. है ना? क्या ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आया? यही तीन प्रॉपर्टी हम नोट डाउन करते हैं हमेशा, पोजीशन, नेचर और रिलेटिव साइज। बिहाइंड ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल, इरेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज इज मैग्नीफाइड। केस वन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो देखो, अगर यही केस, सिर्फ और सिर्फ यही केस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा और किसी केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। ओके ना? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि जब तक ऑब्जेक्ट को हम फोकस से पहले कहीं पे भी रखें, लेंस और फोकस के बीच में, हमेशा इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इफेक्ट। बोलो केस टू में पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का? द ऑब्जेक्ट विल प्लेस एट फोकस। Now the object is placed at focus of the convex lens. So convex lens have been taken. This line represents optical center. That's 2f dash f dash. This is principal axis. This is twice of focal length. This is focus. This is focus. This is twice of. Now the object have been placed at focus. Let A be the top position of object and B be the bottom position of object. Now listen, rule 1. A ray of light parallel to principal axis in convex lens after diffraction passes through principal focus. है ना? Rule 2. A ray of light passing through optical center goes straight after diffraction through the lens. Now, ये दो रिफ्रैक्टेड रे मिला, क्या दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन हो रहा? नो, ये पैरेलल है लाइट रे है, ये पीछे में इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा? नहीं। तो अगर इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं। इंटरसेक्शन होगा, इधर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो या वर्चुअल इंटरसेक्शन हो, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ पे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पैरेलल है ना, पीछे मिल रहा है ना आगे मिल रहा है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हम सिंपली लिख सकते नो इमेज इज फॉर्म। अब क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो हम एज्यूम कर रहे कि माना कि इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा, इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है,
क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो हम क्या एज्यूम कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा, इन्फिनिटी पे। अब ध्यान से सुनो, तो अगर मानो इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा तो ओरिजिनली रिफ्रैक्टेड लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल डायरेक्शन है रिफ्रैक्टेड रे का। तो अगर माना ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, माना कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा, अल्तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन है, इन्फिनिटी का कोई, इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी का रेंज किसी को पता है क्या, नहीं। हम माने कि इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा, उस मतलब इस कॉन्सिडरेशन पे कि इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा, हम नेचर लिख रहे हैं और रिलेटिव साइज लिख रहे हैं। तो अगर मानो इन्फिनिटी में इमेज का फॉर्मेशन अगर हो रहा तो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा इन पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट का, जो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अब आगे देखा, ध्यान से सुनो, अब ये रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रहा तो इसका इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इंटरसेक्शन होगा उस इमेज को रियल बोलेंगे, वर्चुअल, रियल, है ना। प्रीवियस केस में सेम साइड बन रहा था, हम क्या वर्चुअल, यहाँ पे रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड। अब लास्टली रिलेटिव साइज, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मानो यही अगर इन्फिनिटी तो इतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज विल बी मोर देन, मच मोर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, and thus the magnification will be much more than 1. A highly magnified image will be often whenever an object is placed at focus of a convex lens. देखो रूल्स चेंज हो रहा, ये प्रॉपर्टी सेम होगा जैसा मिरर में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का होगा, बस इमेज फॉर्मेशन करने का तरीका चेंज हो रहा और इन इमेज का थोड़ा बहुत तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ा बहुत चेंज की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा, हर केस में आइडेंटिकल होगा। थर्ड केस में अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, f और 2f के बीच में, कॉन्वेक्स लेंस के बीच के केस में। When object is between f and 2f of a convex lens, टू एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बोलो यहाँ पे साइज क्या होगा इमेज का, बड़ा या छोटा, बड़ा, क्योंकि 2f से पहले है। ये ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच में रखा गया, ये टॉप पोजीशन है, b बॉटम पोजीशन है ना। रूल 1, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यस और नॉट, है ना। f और 2f के बीच ऑब्जेक्ट रखा गया, ये टॉप पोजीशन है, b बॉटम पोजीशन है। रूल 1 का इस्तेमाल किया है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल, ये कहाँ से पास करेगा, फोकस। रूल 2, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस आफ्टर डिफ्रैक्शन गोज स्ट्रेट, तो स्ट्रेट चला जा रहा है। बोलो क्या दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हुआ है, ओरिजिनल इंटरसेक्शन और वर्चुअल, ओरिजिनल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा, क्या ये इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये बनाना पड़ेगा कॉपी में, जब तक खुद नहीं बनाएगा कुछ नहीं समझ में आएगा। इमेज फॉर्मेशन समझ में आया, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा गया, ए टॉप पोजीशन है, बी बॉटम पोजीशन है, रे ऑफ लाइट ए से जा रहा जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये फोकस से पास कर रहा है ना, और ये ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा रे ऑफ लाइट जा रहा है, दोनों का ओरिजिनल इंटरसेक्शन बियॉन्ड 2f हो रहा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। पता चल गया पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, 2f के बाद क्या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट और अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट तुमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन में, इमेज इज फॉर्म beyond 2f, beyond twice of focal length on other side of lens। बोलो नीचे एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज क्या हुआ, रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता, तुमको दिख भी रहा, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऑब्जेक्ट का टॉप पोजीशन ए है, इमेज का टॉप पोजीशन बी डैश है, इमेज कौन सा इमेज है, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके अपोजिट साइड की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज कौन सा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्टली व्हाट अबाउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इज मच मोर या मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज ही होगा क्योंकि अब भी हम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से पहले रख रहे हैं, ये इमेज कौन सा इमेज होगा, मैग्नीफाइड इमेज। ये केस समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आया, ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन 2f के बाहर हो रहा है, दूसरे साइड ऑफ लेंस के, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और जो साइज है इमेज का वो ज़्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, इस इमेज को हम कौन सा इमेज बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। फोर्थ प्रॉपर्टी पे अब आते हैं, बताओ केस 4 में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, एट
2f पे, then object is at twice of focal length of convex lens. Now listen, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, किस रेस्पेक्ट में रेफरेंस है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखें तो बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता, लेकिन हमको नोट करना पड़ेगा पोजीशन क्या होगा। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट फिर से पोजीशन 2f नहीं होगा, हम बता रहे कैसे। अब ये बनाना इतना आसान नहीं हुआ तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए इस डायग्राम को। जैसे सेंटर कर्वेचर में काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम आया, तो यहाँ पे तुमको काफ़ी बेहतर तरीके से अगर एक्यूरेसी को मेंटेन करके बनाता तब ये डायग्राम तुम बना पाएगा। एक्यूरेसी मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे f टू f को प्लॉट करो, लाइन को एक्यूरेटली पैरेलल लो, तभी यहाँ पे बना पाएगा। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम फोकस 2f को दोनों तरफ मार्क कर चुके हैं। अब हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना, 2f पे। ध्यान से देखो, तो ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखें, ये टॉप पोजीशन और बी बॉटम पोजीशन है ना। रूल 1, a ray of light parallel to principal axis after diffraction passes through principal focus, है ना। क्या ये ray of light फोकस से पास कर रहा या नहीं जा रहा? रूल 2, a ray of light passing through optical center of a convex lens after diffraction goes straight. क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा, ये 2f है ना, तो ओरिजिनल इंटरसेक्शन हुआ या वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है? ओरिजिनल इंटरसेक्शन हो रहा है। ये इमेज कौन सा इमेज होगा, रियल और वर्चुअल? रियल। इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? हम फिर से डिक्टेट करें, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट 2f पे रखा गया, ये रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट का टॉप पोजीशन ये है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, क्या ये फोकस से पास कर रहा? रूल 2, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, स्ट्रेट चला जाएगा ना। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा? 2f के नीचे, सेम साइड और अदर साइड ऑफ द लेंस। तो फॉर्मेशन पोजीशन क्या होगा, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड, सॉरी एट 2f on same side or other side, on other side of lens. What about the nature of image? It is real, it is inverted. And what about the size? The size is same. देखो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज यहाँ पे क्या मिल रहा है? सेम। हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज इज सेम एट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड फॉर दिस केस द मैग्निफिकेशन इज -1। हम ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैग्निफिकेशन +1 कहाँ पे फॉर्म होगा, तो आंसर होगा प्लेन मिरर, है ना, कि इमेज वर्चुअल भी है और साइज ऑफ इमेज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। हम बोले मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -1 कब होगा, तो आंसर क्या होगा, सो बताओ। केस 4 कॉनकेव मिरर, है ना, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और कर्वेचर पर रखते तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, मैग्निफिकेशन 1 है और इमेज रियल भी है। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन -1 कब होगा, जो ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और कर्वेचर पे रख रहे, कब रख रहे सेंटर और कर्वेचर पे, कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के 2f पे जब ऑब्जेक्ट को रखते तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑब्जेक्ट बराबर होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है, क्योंकि इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन -1 भी होगा। केस 5 पे अब आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड 2f। देखो ये भी केस सब तो खत्म हो रहा और काफ़ी कम बचा इस चैप्टर पढ़ने को, कॉनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन और पावर ऑफ लेंस। तो 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर तुम बताओ इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें या ह्यूमन आई। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा शुरू करें, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे। अगर तुम्हारा डिमांड रहेगा ह्यूमन आई पढ़ना तो ह्यूमन आई पढ़ा देंगे, जैसा तुम बोलो। प्रोबेबली सिलेबस कॉम्प्रेस हो भी सकता है, ये गारंटीड नहीं हम बोल रहे, लेकिन हो सकता है कि सिलेबस कॉम्प्रेस हो। अगर सिलेबस कॉम्प्रेस होता तो फिजिक्स में तुमको बस लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी और रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई, क्योंकि हर हाल में हमको लगता है कि सिलेबस कॉम्प्रेस होगा ही, और सिलेबस कॉम्प्रेस होता तो यही सिलेबस होगा तुम्हारा। फिजिक्स में तुमको यही 3 चैप्टर पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन ह्यूमन एंड साथ में सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर भी कंसेप्ट वाइज देखा तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म काफ़ी बेहतर चैप्टर है। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी अभी समझ में आया तो 12th में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो वो पढ़ाना पड़ेगा। तो ये तुम बताओ कि उसका इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें या मैग्नेटिज्म या फिर ह्यूमन आई। ओके, नहीं मैग्नेटिज्म तो पहले शुरू नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हम पढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के विदाउट भी सब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि हम क्या शुरू करें। ठीक है, फिलहाल केस 5 शुरू बनाते हैं। केस 5 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड 2f। सिलेबस कॉम्प्रेस होगा तो केमिस्ट्री का अगर सिलेबस देखें तो कार्बन कंपाउंड और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आएगा, और बायो में देखें तो रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और लास्ट का 2 चैप्टर सिलेबस रहेगा। तो मैं यहाँ कहना है कि इन चैप्टर पे काफ़ी फोकस करो, कि इन चैप्टर को कंप्लीट ही कर लो किसी भी तरह। बाद में अगर होल सिलेबस है, बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा हम लोगों के पास, तो इन सिलेबस को तो खत्म कर लो। फिजिक्स में सोर्स ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई, केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, बायो में रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आप एनवायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स, यही सिलेबस होगा शायद तुम्हारे बोर्ड का। बियॉन्ड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करो, ये टाइम काफ़ी प्रीशियस है।
देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रखा गया, ये ए टॉप पोजीशन है, बी बॉटम पोजीशन, रूल 1, ये रिफ्रैक्ट क्या पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये किससे पास करेगा, फोकस से रिफ्रैक्शन का रूल 1 यूज किया। और रूल 2 क्या है बताओ, अगर रिफ्रैक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा हो, क्या रिफ्रैक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, स्ट्रेटली चला जाएगा, तो दोनों रिफ्रैक्ट का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और सेम साइड ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना, ए बी बियॉन्ड 2f रखे ऑब्जेक्ट को, ये रूल 1 है, रिफ्रैक्ट पैरेलल तो ये फोकस से जा रहा और रिफ्रैक्ट ऑप्टिकल सेंटर जाते हैं स्ट्रेटली जा, दोनों का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी में। फर्स्ट पॉइंट किसके लिखते हैं, पोजीशन के लिए, हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म between f and 2f on other side of lens. Whatever the property, real, ओरिजिनल इंटरसेक्शन हुआ है और ये इमेज इन्वर्टेड भी है, एंड साइज, इसका साइज हो रहा है ऑब्जेक्ट या इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे इमेज को हम कौन सा इमेज बोलते हैं, डिमनेस। क्या बताओ इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 से बड़ा या 1 से कम, 1 से कम। इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये इमेज रियल है। एक बात यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होता, हम बोले m-0.2, हम बोले m-2, ये इमेज बड़ा है या छोटा, m-2 बड़ा इमेज होगा। देखो मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू हमको साइन, न्यूमेरिकल का साइन बस हमको नेचर की वाई बताता, क्योंकि m-2 है। देखो इस बात को समझो, हम बोले m-2, इसका तो ये नहीं कि 1 से ये क्या है छोटा, ये कंसेप्ट ही गलत है। यहाँ पे हमको बस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना, 2 1 से बड़ा है तो इमेज कौन सा होगा बोलो, इनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल। -2 मतलब डिमिनिश इमेज नहीं होगा, यहाँ पे मिस कंसेप्ट होता बच्चों के पास। हम बोले m-0.5, ये डिमिनिश इमेज है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है और साइन क्या है माइनस। इस बातों को गौर से समझो, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता, तो -2 को 1 से कम समझ लेगा तो कंसेप्ट नहीं है। देखो हम फिर से इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। m का न्यूमेरिकल वैल्यू, हमको साइन को नहीं देखना, हम साइन को देख के ये डिसाइड नहीं करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा या कम। m-2 हमको माइनस मतलब रियल और वर्चुअल बताएगा, 2 क्या बता रहा है, 1 से बना तो वो इमेज मैग्नीफाइड होगा, तो वो रियल और मैग्नीफाइड इमेज है। यहाँ पे तुमको काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे को इससे प्रॉब्लम हुआ है। लास्टली देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। आज ये पार्ट भी खत्म कर दिया गया है। अगली क्लास में साइन कन्वेंशन से पहले कॉन्केव लेंस पढ़ा दे रहे, नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन और पावर ऑफ लेंस। लेकिन क्वेश्चन बनाओ, बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बनेगा। आज चांद के बाद हर हाल में एनसीईआरटी बनाओ, जो प्रॉब्लम में पूछो, जो प्रॉब्लम उसी वक्त पूछो, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, पर समझा के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, पर बनाओ। हाथ चलाओ। एट इन्फिनिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये केस नंबर 6 है। देखो अब ये सबसे आसान सा केस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f है, ये f, ये f और ये 2f डैश। देखो माना ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी तो एक पॉइंट जो लेंस से काफ़ी दूर है, माना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा। देखो इसी केस को हम यूज करते हैं लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। प्रैक्टिकल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम प्रैक्टिकल में लिखेगा भी, और तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन, हाउ कुड यू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और हाउ कुड यू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। रूल यही है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे और जिस पॉइंट से इमेज बन रहा है, स्क्रीन को तुम प्रेस करो, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन है उस पॉइंट का तुम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस से कैलकुलेट करोगे, इसका फोकल लेंथ होगा। अप्रोक्सीमेशन है फोकल लेंथ कैलकुलेशन का। लास्ट पॉइंट दिया गया तुम्हारे बुक में, आप ध्यान से देखो। टॉप पोजीशन से एरिया ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, बॉटम पोजीशन से एरिया ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। ये दोनों रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, इनफैक्ट ये सभी पॉइंट से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है ना, ये ईवी के इनफाइनाइट पॉइंट से। तो ये सभी का रिफ्रैक्ट, ये सब का सब कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, फोकस। कन्वर्ज होगा ही नहीं होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्शन कन्वर्ज है फोकस, ऐसा हम कल भी देख चुके। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस। ये बात समझ में आया। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ए टॉप पोजीशन है, बी बॉटम पोजीशन है। हर पॉइंट से हम यहाँ पे टॉप और बॉटम पोजीशन से रिफ्रैक्टेड लाइट रे को कंसीडर करें जो पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों रे ऑफ लाइट, जो टॉप और बॉटम की रिस्पेक्टिव रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, कन्वर्ज ये कहाँ पे कर रहा है, फोकस पे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे। तो सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, फिर हम साइज के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे। व्हाट अबाउट द पोजीशन, इमेज इज फॉर्म एट फोकस।
फोकस पे बना, याद करो केस 2, whenever an object is placed at focus of a convex lens the image is formed at infinity, but whenever an object is placed at infinity the image is formed at focus. एक और बात, whenever an object is placed at focus of a convex lens the image form is highly magnified, yes or not, हम पढ़ चुके ना, but whenever an object is placed at infinity of a convex lens the image is point shape, it is highly dimness image. पॉइंट शेप इमेज का फॉर्मेशन हुआ। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक सा टॉप और बॉटम पोजीशन दोनों सेम आ रहा, फोकस पे कन्वर्ट हो रहा, तो इमेज कौन सा इमेज होगा? पॉइंट शेप इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ये हो गया, ये इमेज कौन सा है? रियल, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, दूसरी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हुआ इन्वर्टेड। एंड व्हाट अबाउट द साइज? द साइज ऑफ इमेज मच लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन इज मच लेस देन 1, और ये मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। मानो बोले मैग्निफिकेशन मानो 0.1111 है, ये कौन सा? ये इमेज का फॉर्मेशन है। तो आज के केस में आज के क्लास में हम सभी इमेज फॉर्मेशन को कर चुके हैं। अब बचा यूज। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? देखो कॉन्केव लेंस हम कल की क्लास से पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोट डाउन करिएगा। कॉन्केव लेंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिमनेस इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो कॉन्केव लेंस का उतना वाइडली यूज नहीं होता है। बेसिकली कॉन्केव लेंस को मायोपिया के करेक्शन में यूज करेंगे। जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हमेशा कौन सा लेंस का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेंस फॉर्म करता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन न्यूमरस हो सकता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड सो ऑन, कैटरैक्ट एक्सेट्रा। हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए भी हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ये कुछ यूज है कॉन्वेक्स लेंस का, बाकी तुम यूज अपने से लिखो। और तुम्हारा 1 2 ये थर्ड पार्ट भी आज तुम्हारा खत्म हो चुका है। इन थर्ड पार्ट तक का क्वेश्चन बनाओ, जो प्रॉब्लम है तुम पूछो, और क्वेश्चन बनाओ। हम लोग अगली क्लास से कॉन्केव लेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।